Okay, I think students, last time what we have done, we have completed the homologous series, isn't it? कहाँ तक हुआ था homologous series तक हुआ था? Announce करो बेटा, अभी प्रेजेंट नहीं था लास्ट लेक्चर में. Okay, so जो मुझे याद है वो homologous series we have completed. We have to start with the structure of organic compound. So let's continue. मैंने आपको कुछ भेजा हूँ ग्रुप में, तो अपने याद करके आऊँगा. आई थिंक सो, इजंट इट? करके आया है कि नहीं आया? ओके, वेरी गुड. वो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आपको याद होना चाहिए. मैं बताऊंगा कैसे यूज़ करना है उसको. ओके, सो लेट्स स्टार्ट, कंटिन्यू. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. नाउ स्ट्रक्चर में, स्ट्रक्चर कैसा होता है? स्ट्रक्चर में ऑर्गेनिक कंपाउंड आर रिप्रेजेंटेड इनटू टू formulas, that is molecular formula and structural formula, right? Now molecular formula, what is molecular formula? Example, if I write the example structure of CH4, this is a molecular formula, this is a structure, this is a structure formula, right? This is a molecular formula, right? Now समझ में आया हम लोग को? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? इट इज अ फार्मूला विच इंडिकेट्स एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम कौन कौन से प्रेजेंट है, विच काइंड ऑफ एटम्स या हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, विच that is determined, or that is what expressed in terms of molecular formula. But if you talk about structural formula, it represents the arrangement of atom. Arrangement means what? How the atoms are arranged in the molecules. Molecules में atoms किस तरह से arrange है, right? You can see over here. Here atoms, you can see these hydrogen are attached to carbon atom. So by this formula you can get the exact information that how the atoms, which atom is attached to which atom, and that things we will understand in structure formula. So what is the structure formula? Structure formula is the arrangement of atoms uh, in the molecule. And what is molecular formula? It is a actual number of atoms present in the what molecule is called is what molecular formula. Understood? Okay. Now structure formula are of two types, that is condensed formula or branch formula. Condensed formula or branch formula. What do you mean by condensed formula? If I talk about is ethane, formula is C2H6, right? Now if I write the condensed formula of this compound, two carbons are there, so I will write C, right? Now, right. So how many, what is the valency of carbon? Valency of carbon is 4. So since here one bond is there, so I will put 3 over here. Since one bond is there, I will put 3 over here. So this is a condensed formula. This is called as what? Condensed formula, because atoms are condensed. उसको क्या किया हमने? कम मतलब क्या किया है? कंप्रेस किया, एक जगह पे दबाया है, राइट ना? एटम्स खुल के हम लोगों ने रिप्रेजेंट नहीं किया है. तो दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड एज कंडेंस फॉर्मूला. बट इफ आई राइट this formula like this, CC is there, but if I write hydrogen in open form like this, right now, if I write hydrogen in this way, so this formula is called as what? Open formula or branch formula. This formula is called as what? Open formula or branch formula. Understood? So you can easily make the different formulas over here. C2H6 is there, so you can make CS3 CS3, right? How to make formula मैंने बता दिया आपको, right? कैसे करेंगे बताओ, चलो लिख दो हम लोग एग्जाम्पल. लेट मी टेक एग्जाम्पल ओवर हियर, आप मेरे को बताओगे, right? So if I want to make a condensed formula as well as branch formula of butane, right? Butane, what is the formula of butane? Butane is what? C4H10. What you have to do, you have to write the by heart the name of all alkane. Do you know what is the name, means name of alkanes? All 20 alkanes, do you know how many alkanes you know? आप सबको मालूम है अल्कीन के नाम, याद है किसी को? यस, मैं आस्किंग द क्वेश्चन, रिस्पॉन्स फास्ट. आपको अल्केन्स के नाम मालूम है? मीथेन, इथेन, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट ऑन. मीथेन, इथेन, प्रोपेन.
Yes or no? Please tell me. All till 12, till 20. सक्षम 20 तक याद है बेटा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन. How many you know? Yes, tell me. सक्षम आपको कितना याद है? कहाँ तक याद है? Till at what carbon? Nonane, decane. So beta, these are the name you should know with carbon, number of carbon. It represent number of carbon. If one carbon alkane is there, it is called as methane. Two carbon alkane is there, butane, right? Sorry, ethane. Sorry, I am writing over here. One, you can write it down with me. One carbon is there, methane, right? Two carbon is there, ethane, right? Three, propane. Four, butane. Five, pentane. Six, what? Six is called as hexane, heptane, octane, nonane, decane, है ना? Then undecane, dodecane, tridecane, tetradecane, pentadecane, hexadecane, हेप्टाडेकेन. मैं एक भेज देता हूँ आपको, बेटा वेट करो, मैं आपको ये नेमिंग जो है नंबरिंग के साथ आपको भेज देता हूँ. वेट, लेट मी शेयर यू सो दैट यू कैन बाय हार्ट. अगर नहीं भी याद है तो आप याद कर लो, याद करना चाहिए आपको. दैट विल हेल्प यू इन केमिस्ट्री. राइट हियर द कंपाउंड नेम इज है ICSC. See, I have sent in what? In your group. Please check it. Is it there? Yes. Yes. So that table I am going to show you. तो ये आपको याद होना चाहिए. मैंने आपको भेजा था, मेरे को लगा ये पता है, आपको याद है, इसीलिए आपने क्या किया, मतलब मैंने स्टार्ट किया. बेटा ये आपको याद रखना है. केमिस्ट्री हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए आपको ये कंपलसरी 20 टर्म, 20 नहीं तो 12 तक एटलीस्ट याद होना चाहिए, बट 20 तक याद हो तो बेटर है. बहुत ईजी है. मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, बेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकन, राइट ना? अनडेकेन, डोडेकेन, ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन, पेंटाडेकेन, हेक्साडेकेन, हेप्टाडेकेन, ऑक्टाडेकेन, नोनाडेकेन एंड आइसोसेन. राइट, आपको इसको बाय ऐड करना है. क्लियर है हम लोगों? यहाँ तक क्लियर है? नाउ लेट्स, समझो एग्जाम्पल याद है, फिलहाल तो हम लोग याद नहीं है, मगर आपको याद करना है तो याद कर लिया. तो सिंस हियर 4 कार्बन इज देयर, राइट ना? और यहाँ पर बेटा फॉर्मूले में अगर पुट करने का, अल्केन, हाउ यू कम टू नो दैट इट इज अल्केन? अल्केन का फॉर्मूला, अल्केन मीन्स एन. हाँ, अल्केन का व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन? अल्केन फॉर्मूला इज व्हाट? CH, sorry, CnH2n plus 2. Formula is what? CnH2n plus 2 means what? If you put 4 over here, so H would be what? 2 into 4 plus 2 is equal to क्या हो गया? 10 हो जाएगा. इसका मतलब फॉर्मूला हो गया C4H10. Since it is a formula which is based on this formula, so we can say it is a alkane, right now? If I write the formula like this C4H8, let me check ये क्या फॉर्मूला में फिट होता है. ये क्या है? CnH2n हो गया. एंड दिस फॉर्मूला इज फॉर व्हाट? अल्कीन. अल्कीन का फॉर्मूला क्या है? CnH2n. समझा? एंड अल्काइन का फॉर्मूला क्या है? अल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n माइनस 2. मतलब जितना कार्बन है उसका डबल कम, दो कम रहेगा. अगर डबल उसके डबल से दो कम रहेगा, कार्बन के नंबर से डबल से दो कम हाइड्रोजन रहेगा तो उसको अल्काइन बोलेंगे. अगर कार्बन का डबल रहेगा तो अल्कीन बोलेंगे, और कार्बन के डबल से दो ज़्यादा रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? अल्केन. अंडरस्टूड? अरे बेटा हाँ या ना? नाउ लेट्स स्टार्ट. जो हम लोग ने सीखा वो करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद अल्केन. 4 कार्बन लेना. तो व्हाट आई हैव टू राइट द टू फॉर्मूला ओवर हियर, कंडेंस फॉर्मूला एंड what? That is a branch formula. Let's start with condensed formula. How to write the condensed formula? What I will do, I will take 6 car. I will focus on carbon only. We will not focus on hydrogen. We know that it is a alkane, na?
बिकॉज इट इज फिट इन अल्केन फॉर्मूला, है ना। ये हाइड्रोजन कितना है, कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये अल्केन है। तो अल्केन मतलब हम लोग को सारे बॉन्ड क्या करना है, सिंगल बनाना है। क्या बनाने का, सिंगल। इतना क्लियर है बेटा? अरे बोलो हाँ या ना। हाँ, सो व्हाट आई विल डू, आई विल टेक 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के सिंगल बॉन्ड से बना दिया मैंने। एंड व्हाट विल डू, वी विल ऐड हाइड्रोजन, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, एच होता है। तो यहाँ पे वी विल पुट 3 हाइड्रोजन। कैसे 3 लगाया बोलो बेटा, हम लोग को 4 करना है। हम लोग को क्या करना है, 4 माइनस 1, 4 माइनस बॉन्ड। कैसे, यहाँ पे हाइड्रोजन फिलिंग करना है, इसे कैसे करना है, 4 माइनस बॉन्ड्स, कितने बॉन्ड अटैच हो कार्बन से, इज इक्वल टू यू विल गेट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन। समझा हम लोग को हाइड्रोजन कैसे फिट करना है। तो यहाँ पे बताया मैंने 4 माइनस, तो 4 में से ये एक बॉन्ड अटैच है इससे, तो 3 आ गया। इसी कार्बन से 2 बॉन्ड अटैच है, तो वी विल पुट 2 ओवर हियर। 2 बॉन्ड्स आर देयर, सो आई विल पुट 2 ओवर हियर। 1 बॉन्ड इज देयर, सो आई विल पुट 3 ओवर। अंडरस्टूड, दिस इज द कंडेंस फॉर्मूला। समझा बेटा? अरे बोलो, एक ही बच्चे को समझा। सक्षम एंड व्हाट अबाउट अदर? Now branch formula how to write, again same चीज करेंगे हम लोग। what we will do, we will write 4 carbon, 4 carbons are there, and since it is what double, more मतलब 2 more than double, डबल से 2 ज़्यादा है, तो समझो ये अल्केन है। तो अल्केन मैंने सब बॉन्ड सिंगल बना दिया, ये हो गया स्टार्टिंग, ये स्केलेटन बन गया। नाउ हाइड्रोजन आई हैव टू पुट, सो आई विल पुट 4 माइनस 1, मतलब क्या हुआ, 3 हाइड्रोजन लगाने का, इसमें ओपन करके लिखाने का हाइड्रोजन। यहाँ पे 4 minus 2 bonds are there, so I will put 2 hydrogen over here. 2 bonds are there, I will put 2 hydrogen over here. 1 bond is there, so I will put 3 hydrogen over here. Easy, understood? समझा बेटा? एक और करते हैं, फिर आप मेरे को, आप ये वाला आप बताओ, ठीक है। फर्स्ट टेल मी, दिस इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन। इसका नाम है पेंटेन। अगर आपको याद करना है, फिलहाल मैं लिख रहा हूँ, अगली बार आपको याद होना चाहिए। नाउ टेल मी, दिस इज अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, कौन सा ये? कैसे पता करने का बोला मैंने आपको, कार्बन के हाइड्रोजन की क्वांटिटी देखने का। हाइड्रोजन की क्वांटिटी कार्बन से ज़्यादा है क्या, कार्बन से ज़्यादा है तो अल्केन, कार्बन से कम है तो अल्काइन, और कार्बन के डबल के बराबर है, हाइड्रोजन कार्बन की क्वांटिटी कार्बन के डबल के बराबर है, डबल के बराबर है तो अल्कीन, डबल के बराबर है तो अल्कीन, डबल से 2 ज़्यादा है तो अल्केन, और डबल से 2 कम है तो अल्काइन। बोलो अभी, जल्दी बोलो। अरे मैं, अल्केन, यस दिस इज अल्केन ना, बिकॉज 5 टू ज़ा 10, 10 से ज़्यादा है ना, 10 से 2 ज़्यादा है, इसका मतलब ये अल्केन में आएगा। अरे हाँ या ना? ओके, फिर हाउ टू राइट द फॉर्मूला मेरे को नहीं आता, बताओ कैसे करने का, हाउ टू राइट द फॉर्मूला, टेल मी, ट्राई करो, खुद ट्राई करो। कंडेंस फॉर्मूला लिखना है। व्हाट आई विल डू, फर्स्ट आई विल टेक व्हाट, कार्बन, इजंट इट? अरे बोलो, ट्राई करो बेटा, सभी को, तीनों को बोलना है, मुंह नहीं बंद रखना है, सभी लोग को आंसर करना है। 3 भी नहीं, अभी ज़्यादा बच्चे आ गए। सक्षम, आर्या, आर्या इज देयर, ऑल आर इज देयर, तो सबको रिस्पॉन्स करना। मैं एक काम करता हूँ, ये मीटिंग हटा देता हूँ, अब कोई भी आ सकता है, ठीक है। ओके, अभी मेरे को सबका आंसर चाहिए, सुनाई दिया? परेरी, सक्षम, आर्यस, बेटा रिस्पॉन्स करो, आपको आना चाहिए, नहीं आप क्यों आए यहाँ पर, आप समझने के लिए आए ना, आपको ट्राई करना चाहिए ना, तो बोलो क्या करूँ, बोलो। व्हाट आई विल डू, आई विल टेक कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, इसको देखो बेटा, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, 5। So what I will do, 5, I will add 5 carbon, 1 2 3 4 5। Now since it is alkane, so क्या करूँगा मैं, कौन सा बॉन्ड लगाऊंगा, सिंगल, डबल, ट्रिपल? अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सारे के सारे बॉन्ड सिंगल लगा दिया। समझा हम लोग को, यस और नो? नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू राइट द हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कैसे करने का है, हाइड्रोजन कैसे लगाने का है बताया मैंने, क्या करने का, 4 माइनस बॉन्ड। तो बोलो अभी यहाँ पे कितना आएगा, कितने हाइड्रोजन लगेंगे ये कार्बन पे, बोलो कितना आएंगे, 4 माइनस कितना बॉन्ड, एक बॉन्ड है ना यहाँ पर, यस और नो? तो कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3। यस, वेरी गुड। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर विद दिस कार्बन, कितने बॉन्ड है इसमें,
2, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? बोलो, डरो मत बिंदास। 2 आएगा ना बेटा, 4 माइनस 2। अरे बोलो ना यार, 4 माइनस 2 2 होता है ना, माइनस आता है ना आपको। अब बोलो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 2, वेरी गुड। यहाँ पे कितने आएंगे? 2, राइट ना, 2 बॉन्ड्स आर देयर, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कितने आएंगे? 3। अंडरस्टूड, समझा अभी? देन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हाउ टू राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला? सेम चीज करेंगे पहले जैसा। फर्स्ट वी विल राइट द हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 5 कार्बन, सो आई विल राइट 5 कार्बन। बॉन्ड कौन सा लगाओ? सिंगल, डबल, ट्रिपल? सिंगल। ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बिकॉज, वाई क्यों सिंगल लगाया बोलो बेटा? क्यों लगाया? क्योंकि ये कौन सा है? ये अल्केन है। ये क्या है? अल्केन है। अल्केन कैसे मेरे को मालूम पड़ा अल्केन है? कैसे मेरे को मालूम पड़ा अल्केन है? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, है ना। ये फॉर्मूले में हम लोग को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन जो है कार्बन से डबल से 2 ज़्यादा है ना। मैं बोला कार्बन के डबल से 2 ज़्यादा रहेगा तो अल्केन, डबल से 2 कम रहेगा तो अल्काइन, और डबल उतना ही रहेगा एग्जैक्टली तो अल्कीन। समझा? हाँ, अब आगे बोलो क्या करूँ? व्हाट टू डू? हाइड्रोजन फिल करना है। अब हाइड्रोजन कैसे फिल करेंगे? यहाँ पे ओपन करके लिखेंगे ना। तो क्या करूँगा? कितने हाइड्रोजन लगाओ बोलो इस पे? ये कार्बन पे कितने हाइड्रोजन आएंगे? 3, वेरी गुड। 1 2, ओपन फॉर्म है, पूरा खोल के लिखने का। यहाँ पे हाउ मेनी हाइड्रोजन? बोलो जल्दी। 2 ना, 1 2 बॉन्ड्स आर देयर। अभी बोलो यहाँ पे कितने बॉन्ड है और कितने हाइड्रोजन आएंगे? वेरी गुड। यहाँ पे बोलो, वेरी गुड। यहाँ पर लास्ट कार्बन पे, वेरी गुड। समझा? इजी। अभी भी मेरे को 2 ही बच्चों का नाम आवाज आ रही है। यस, सक्षम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस। अंडरस्टूड व्हाट? यू हैव टू आंसर ना। मैंने क्या बोला? आंसर करना है। व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू आंसर मी, राइट? Now we will start with alkene. Let me take another example. C2H4. Tell me, this is alkane, alkene, alkyne, or why? ये अल्कीन है, अल्केन है या अल्काइन है? फॉर्मूला देख के बताओ। अल्कीन है, अल्कीन। क्या ये? अल्कीन। वाई अल्कीन? क्यों अल्कीन है बेटा? वाई दिस इज अल्कीन? यस, नो, बिकॉज कार्बन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज डबल, एग्जैक्टली डबल टू कार्बन। कार्बन का एग्जैक्टली डबल रहेगा हाइड्रोजन ना, तो अल्कीन होता है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिख लो, यहाँ पर लिख लो, आप लोग लिख लो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो। अल्केन इज व्हाट? इन अल्केन हाइड्रोजन इज, हाइड्रोजन इज 2 more than डबल ऑफ, डबल ऑफ कार्बन। समझा भी? अरे समझ में आ रहा है हिंदी क्या बोल रहा हूँ मैं? मतलब अगर CN रहेगा तो H कितना रहेगा? 2N रहेगा, मतलब उसका डबल का, और उसमें 2 ऐड रहेगा, एक्स्ट्रा रहेगा। समझा? अरे बोलो। अल्कीन रहेगा तो अल्कीन इज व्हाट? अल्कीन इज एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली डबल ऑफ, डबल हाइड्रोजन है, सॉरी हाइड्रोजन भी आना नहीं, डबल हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन यहाँ लिखो, हाइड्रोजन एग्जैक्टली डबल देन डबल ऑफ कार्बन। समझा हम लोगों? एग्जाम्पल अगर लिखेंगे तो C अगर N है तो H कितना होना चाहिए? 2N होना चाहिए। H कितना होना चाहिए? 2N। समझा? अल्काइन क्या रहेगा फिर? व्हाट इज अल्काइन? अल्काइन इज, इन अल्काइन हाइड्रोजन इज, बोलो, टू लेस, टू लेस देन डबल ऑफ कार्बन। कार्बन के डबल से 2 कम रहेगा। समझा? ओके बोलते फिर मैं पूछूंगा तो नहीं आता, ऐसा क्यों होना चाहिए? फॉर्मूला क्या बनेगा? CnH2n-2। समझा? अब मेरे को बताओ पहले, बाद में अपन ओपन कंडेंस बाद में करें, मैं अभी बनाते जाता हूँ, आप मेरे को बताओ। C3H6, बोलो,
अल्कीन, अल्काइन, अल्केन, अल्कीन, अल्कीन ना बेटा, डबल डायरेक्टली कीन। बेटा ट्राई करो अच्छे से, है ना, ठीक है। C4H10, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। C4H10, अल्केन, अल्की, अल्केन ना बेटा, यस ना, क्या कंफ्यूज हो रही है। C5H8, वेरी गुड। आ रहा है अभी करने के लिए अपने को। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट विथ हमारा जो टॉपिक है वो करते हैं हम लोग। C4H4, नाउ दिस इज अल्कीन और अल्काइन, और अल्कीन, अल्केन। C2H4, अल, वेरी गुड, अल्कीन, राइट ना, दिस इज अल्कीन, राइट ना। अल्कीन इन आया मतलब क्या, इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड। इन का मतलब क्या होता है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स व्हाट, डबल बॉन्ड इज देयर, समझा। एन जब भी आएगा तो एन वर्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, मतलब ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल। यहाँ पे एटलीस्ट वन बॉन्ड जो है डबल रहना चाहिए, समझा हम लोग को। और अगर आइन रहेगा इसका मतलब एटलीस्ट वन बॉन्ड शुड बी ट्रिपल बॉन्ड, समझा, क्लियर। हाँ, आप कोई भी इसमें अगर आइन देख लेंगे तो ये अल्कीन है, कौन सा अल्कीन है ये, इथीन है। ये क्या है, इथीन, इसका नाम बोल देते हैं हम लोग। इथीन कैसे मेरे को मालूम पड़ा, तो ये दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, है ना, ईथ बोलते हैं। अगर वो अल्केन रहेगा तो इथेन होगा, अल्कीन रहेगा तो इथीन रहेगा, और अल्काइन रहेगा तो इथाइन हो जाएगा। समझ में आया हम लोग को। अरे हाँ है ना, दो कार्बन को ईथ बोलते हैं, वो आपको मैंने लिस्ट दिया उसमें से याद करो। एक कार्बन मीथ हो गया, दो कार्बन ईथ, तीन कार्बन प्रोप, चार कार्बन ब्यूट, है ना, वो ऐसा याद करो। एन का हटाने का, अगर अल्कीन है तो आइन, इन बोलने का, और अगर अल्काइन है तो वो यू विल से आइन, अंडरस्टूड। नाम आगे का वही रहेगा, कॉपी पेस्ट रहेगा, समझा। मतलब अल्क जो है कॉमन रहेगा, आगे का एन, इन, एन, आइन वो चेंज होते जाएगा, डिपेंड अपॉन अगर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर दिए जाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट सभी को। यस स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर। वापस आप रिपीट कर देता हूँ मैं आप लोग के लिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो बेटा, अल्केन, कोई भी अल्केन, अल्केन के अपने याद करने के लिए लिख दिया, 20 कार्बन का मैंने दिया हूँ अल्केन, है ना। अल्केन आपने याद कर ली 20 कार्बन। अब अल्कीन के नाम कैसे याद करने का, नहीं याद करने का, अल्कीन याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको मालूम है कि भाई फॉर्मूले में फिट हो रहा है या डबल बॉन्ड कहीं दिख रहा है हमको, तो फॉर्मूले में अगर फिट हो रहा है अल्कीन के फॉर्मूले में, तो हम अल्कीन बोलूंगा। मतलब एग्जाम्पल, अगर मेरे को बोला है कि 5 कार्बन है और अगर कितने, ये 10 है, ये फॉर्मूला किसका, अल्कीन का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका, अल्कीन का है। तो 5 कार्बन को हम लोग अल्केन को क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेंटेन बोलते हैं, बराबर। मगर एन नहीं आएगा, एन किसके रहता है, सिंगल बॉन्ड के रहता है। मगर मैंने ये बोला कि अल्कीन है ना, तो अल्कीन में क्या आएगा, ईन आ जाएगा, समझा हम लोग को। 5 कार्बन अल्कीन क्या आएगा, ईन। और अगर यही अगर ट्रिपल बॉन्ड वाला रहता है, एग्जाम्पल यहाँ पे 8 होता है, कितना होता है 8, तो ये क्या हो गया 8, मतलब ये किसमें फिट हो रहा है, अल्काइन के फॉर्मूले में फिट हो रहा है। तो मैं इसकी जगह पे ये नहीं लिखता था, क्या लिखता था मैं, आइन लिखता था, समझा हम लोग को। सिंपल आपको रखना है एन, इन, आइन। एन स्टैंड फॉर सिंगल बॉन्ड, इन स्टैंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड, आइन स्टैंड फॉर ट्रिपल बॉन्ड। एन स्टैंड फॉर अल्केन, अल्कीन और अल्काइन, और नंबर ऑफ कार्बन तो आपको वही याद करना है, किसको क्या बोलते हैं, समझा, क्लियर हुआ। हाँ, इथीन था। अब इसको कैसे लिखने का, इसका कंडेंस फार्मूला लिखने का कैसे लिखेंगे, मैं अभी शॉर्टकट में लिखता हूँ। कंडेंस फार्मूला सी एफ एंड ब्रांच फार्मूला बी एफ, राइट ना। तो सी एफ क्या करते हैं हम लोग, सी एफ क्या करेंगे हम लोग, हाउ मेनी कार्बन आर देयर, 2 कार्बन आर देयर। तो पहले एक कार्बन लिखा, दो कार्बन लिखा, अरे हाँ या ना। व्हाट यू हैव टू डू, बिकॉज अल्कीन इज देयर, अल्कीन इन है, इन का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड की जगह हम लोग यहाँ पे क्या लगाएंगे, बोलो, समझा, अरे हाँ या ना। फिर आगे तो हम लोग को आता है ये हाइड्रोजन फिल करना है, जिसका कोई नहीं, उसका क्या होता है, हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड्स आर देयर, तो आई विल पुट 2 ओवर हियर। हाउ मेनी बॉन्ड्स आर देयर, दिस कार्बन विद दिस कार्बन, 2 बॉन्ड्स आर देयर, सो आई विल पुट 2 ओवर हियर, इजी। नाउ ओपन फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, फिर से वही, सी सी लिखा, अल्कीन है इसलिए डबल बॉन्ड लगाया, एंड देन हाइड्रोजन फिलिंग के लिए हम लोग एच को थोड़ा ओपन करके लिखेंगे, एच 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 एच, समझा। अरे बोलो, यस, देखते कितना अंडरस्टूड किया हमने। C4H8, टेल मी, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सोच के बोलो बेटा, इज इट अल्केन,
अल्कीन ना बेटा, इट इज डबल ऑलरेडी, मतलब ऑलमोस्ट डबल ना, मतलब एग्जैक्टली डबल ना, इट इज नॉट मोर देन डबल एंड लेस देन डबल, इट इज अल्कीन ना, अल्कीन, यस और नो? अरे हाँ या ना? नाउ हम हाउ टू राइट सी एफ, कैसे लिखेंगे कंडेंस फॉर्मूला? फर्स्ट आई विल टेक 4 कार्बन, सो आई विल टेक 4, 1 2 3, राइट, 4 बराबर। देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव व्हाट, इन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड, तो वी हैव टू पुट डबल बॉन्ड, तो कोई एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे हर जगह पे डबल बॉन्ड डालने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू राइट एनी वन डबल बॉन्ड। तो अब क्या करेंगे, एक डबल बॉन्ड डाल दिया, बाकी सब सिंगल बॉन्ड डाल दो, समझा? कोई भी जगह पे आप डबल बॉन्ड डालो, आपकी मर्जी, समझा? और ज़्यादातर किसी जगह बीच में मत डालना, कभी भी कॉर्नर में डालना। कहाँ डालेंगे आप? कॉर्नर में डबल बॉन्ड डालेंगे, कहाँ डालेंगे? कॉर्नर में, समझा? देन हाइड्रोजन फिलिंग बोलो कितने, हाउ मेनी हाइड्रोजन आ जाएंगे यहाँ पे, कितना आएंगे? जल्दी बोलो, अभी आ गया हम लोग 2, यहाँ पे कितना, हाउ मेनी? 1 ना, 3 बॉन्ड्स आर देयर, हाउ मेनी? यहाँ पे कितने आएंगे? 2, यहाँ पे 3, समझा हम लोगों? एक ही बच्चों को समझा? हाउ टू ओपन इट, हाउ टू ओपन इट पता है ना हम लोग को? फिर से कार्बन लिया, 4 कार्बन, यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया, यहाँ सिंगल बॉन्ड बराबर ना? 2 कार्बन हाइड्रोजन साथ है तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया मैंने, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है तो 1 लगा दिया, यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दिया, और यहाँ पर हाउ मेनी हाइड्रोजन साथ है? 3 है तो 3 लगा दिया, समझा? इजी। लेट मी स्टार्ट विथ अल्काइन, लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ अल्काइन ओवर हियर। C3H4, tell me, alkane, alkene, alkyne? Alkyne, right? Ine means what? Ine mean what? Triple bond, means we have to put at least one triple bond, बराबर? अरे हाँ या ना? अब आगे कैसे बनाऊंगा मेरे को नहीं आता, बताओ कैसे सी एफ कैसे बनाऊं? सी एफ कैसे बनाने का हम लोग को? फर्स्ट वी विल टेक 3 कार्बन, वेरी गुड, 1 2 3, राइट? देन व्हाट आई विल डू, क्या करूँ भाई बोलो? ट्रिपल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड डाल दो, वेरी गुड, and then this is single bond, बराबर ना? Then what we will do, then we'll put the hydrogen over here. How many hydrogen will be there इधर? यहाँ पे कितना आएगा? 1, अरे बोलो yes or no? Here how many hydrogen should be there? बोलो यहाँ पे कितना आएगा? कोई भी नहीं आएगा, 0, 4 माइनस 4, 0, एंड यहाँ पे कितना आएगा? 3, अंडरस्टूड? फिर से एक ही बच्चे को समझा? नाउ इसका ओपन फॉर्मूला बनाओ, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड वैसे के वैसे ही, यहाँ सिंगल बॉन्ड वैसे के वैसे। हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर? 1, तो ओपन करके लिखा, यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 लगा दिया, इजी है। ये वाला बोलो जल्दी से, फटाफट, अभी फटाफट, टाइम नहीं है बस, बोलो। अल्केन, अल्किन, अल्काइन? अल्काइन, वेरी गुड। तो अल्काइन है तो कितना कार्बन? 4 कार्बन है, इसका नाम क्या आएगा? ब्यूट, बराबर, ब्यूटेन, ब्यूटेन ना, तो एन हटाएंगे और क्या लिखेंगे? आइन, तो ब्यूटाइन नाम हो गया इसका। नाम क्या है? प्रोपाइन, समझा? आपको याद करना पड़ेगा इसे, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? चलो बोलो, मेरे को नहीं आता, क्या करूँ? बोलो, ये बी एफ है, yes, very good. First we have to make 4 carbon over here. I have writing over here 4 carbons. Now what should I do? I 1 triple bond should be there and remaining are single bond, isn't it correct? Am I correct? Then what should we have to do over here? 2, this carbon 2, 1 na beta, only 1 na, 3 bonds are already there, 4 minus 3 is 1 or 2. Here how many carbon? Yeah, hydrogen, this carbon, no hydrogen. Here 2 na, how many hydrogen? Very good, understood? ओपन फॉर्मूला, ट्रिपल, सिंगल, सिंगल, बराबर? हियर ओपन करके लिखेंगे, हियर 2 हाइड्रोजन आर देयर, सो आई विल ओपन इट, अंडरस्टूड? इजी, समझा? हाउ टू राइट ओपन फॉर्मूला मीन्स ब्रांच फॉर्मूला एंड कंडेंस फॉर्मूला? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? प्लीज लेट मी नो।
घर प्रैक्टिस करो। आई एम गिविंग यू होमवर्क फॉर यू। आप प्रैक्टिस करेंगे एंड सेंड, आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करेंगे, ओके। और डू वन थिंग, मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ, आप मेरे को वहाँ पे भेजिएंगे, ठीक है। मैं असाइनमेंट 2 डेज ऐसा मैं ऐसा डालूंगा, क्या डालूंगा, ओपन एंड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला असाइनमेंट डाल दूंगा ऐसे ही। और आपको क्या करना है, मैं क्वेश्चन नहीं भेजूंगा आपको, बस ऐसे ही अपलोड करना है, ठीक है। असाइनमेंट में डायरेक्टली आंसर, क्लियर। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ C5H10 पहला क्वेश्चन, C6H12 राइट, C4H14, C4H10, C4H10, then C4H8, then C4H6, then C3H4, right, then बस इतने काफ़ी है, दिस मच इज सफिशिएंट होमवर्क, ठीक है। 4-6 कंपाउंड आई हैव गिवन टू यू, एक दो जो 6 ना 10 कर 10 कर देते देखो, C7H16, C2H2, C2H6, कितने हो गए, 4 4 8 9, एंड देन C5H12, ठीक है। what you have to do, you have to write name of this compound, name of this compound, not you have to write alkane alkene alkyne, exact name, जैसे एग्जांपल 6 कार्बन ईथे, अगर अल्केन में आएगा तो वो हेक्सेन हो जाएगा, अल्कीन में आएगा तो हेक्सीन हो जाएगा, और अल्काइन में आएगा तो हेक्साइन हो जाएगा, समझा हम लोगों। अकॉर्डिंगली यू विल राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, नेम ऑफ द नेम कॉमा कंडेंस फॉर्मूला and structural formula of the above compounds, ठीक है बेटा, होमवर्क समझा, टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस, ओके ओके। ओके स्ट्रक्चर, now next topic is what condensed formula also shows alkyl and functional group, right ना। functional group list I have given to you, right ना, यहाँ पर मेंशन किया है आपको कुछ functional group, बट मैंने आपको इससे एक्स्ट्रा दिया हूँ, ये तो कुछ भी नहीं दिया है आपको, मैं जो दिया हूँ वो ज़्यादा एक्स्ट्रा है, उसमें आपको आईपैक नेमिंग एंड अदर काम हेल्प हो जाएगा, सारे चीज़ें आईपैक नेमिंग में हेल्प करेगा, तो वो वाले फंक्शनल ग्रुप में इससे ज़्यादा है, ये भी है, इसके अलावा भी है, एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप आर देयर जो 12th में रखता है, तो यू विल बाय हार्ट दैट लिस्ट, राइट ना। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया हुआ है, वो फंक्शनल ग्रुप आपको वहाँ से ऐड करना है, समझा। देन अल्काइल ग्रुप, व्हाट इज अल्काइल ग्रुप बेटा, अल्काइल ग्रुप को दो वे में समझ सकते हैं, मैं समझाता हूँ बेटा। अल्काइल ग्रुप टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा अल्काइल ग्रुप। नाउ व्हाट इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, नाउ अल्काइल ग्रुप इज नथिंग बट अल्केन, अल्केन अटैच्ड टू अदर चेन, कोई भी चेन से या कोई भी चीज़ से अल्केन अगर अटैच होगा तो उसको अल्काइल ग्रुप बोलते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरा CH4 था, CH4 को अगर मैं किसी से अटैच करूँगा तो ऑब्वियसली जिसमें से कभी कि यहाँ पे बॉन्ड बनता है तो ऑब्वियसली एक H कम हो जाएगा, है ना, एक H क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। हमेशा कोई भी चीज़ आती है ना बेटा, कोई भी चीज़ अगर जुड़ती है तो बली किसकी चढ़ती है, हमेशा हाइड्रोजन की चढ़ती है, हाइड्रोजन की केमिस्ट्री में कोई औकात नहीं होती है, तो हमेशा कभी भी कोई भी चीज़ अटैच होगा ना
तो वो किसकी जगह लेगा, हाइड्रोजन की जगह लेगा। यहाँ पे 4 हाइड्रोजन थे, मगर यहाँ पे भी कोई चीज़ आके जुड़ी, कुछ है वो नहीं मालूम क्या है, मगर समथिंग इज देयर। so that something is what replace hydrogen, किसको replace किया, हाइड्रोजन को, and that's why the formula is now instead of CH4 now formula is what, CH3। so such compound, this is methane, ये क्या था हमारा, अल्केन था, मीथेन था। so methane now will become, जो एक हाइड्रोजन कम हो जाता है जब अल्केन में से, तो ये एन जो है वो किस में रिप्लेस हो जाता है, आइल में, किस में रिप्लेस होता है, आई। so you will write the name of this compound will methyl, understood, समझा बेटा, yes or no? Let me take another example, C3H8, अल्केन अल्किन अल्काइन, बोलो क्या नाम है इसका, अल्केन अल्किन अल्काइन, ये क्या रहेगा बेटा, C3H8, जल्दी आना चाहिए बेटा, फास्ट। अल्केन, यस, इट इज डबल, हाइड्रोजन इज डबल, मोर देन 2 ऑफ डबल, डबल से 2 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर डबल 6 होता है, उसका डबल 2 ज़्यादा है, इसका मतलब अल्केन हो गया। तो 3 कार्बन अल्केन इज है, तो इट इज कॉल्ड एज प्रोपेन। 3 कार्बन अल्केन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेन, आपको ये याद करना है। तो प्रोपेन इज है, सो अगर मैं ये अटैच करूँगा तो व्हाट विल हैपन, एक एच हाइड्रोजन कम हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा और ये अटैच हो जाएगा। तो दिस कार्बन विल बी नेम क्या हो जाएगा, एन हटा के क्या लिखेंगे हम लोग, बोलो नाम, बोलो अभी क्या हो जाएगा, बोलो नाम क्या होएगा, बोलो, एन हटा के क्या लिखते हैं, आई लगाते, क्या होएगा, प्रोपाइल, अंडरस्टूड, प्रोपाइल या प्रोपील, अंडरस्टूड, कोई प्रोपील प्रोनाउंस करता है, कोई प्रोपाइल, समझा, अरे बोलो। एंड अल्काइल ग्रुप्स आर रिप्रेजेंटेड बाय या डिनोटेड बाय आर, किससे डिनोट करते हैं हम लोग, आर से, समझा। अल्काइल ग्रुप कहीं भी आर लिखा है, इसका मतलब वो अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप होता है, इट कुड बी मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल एंड सो ऑन, इट कुड बी, है ना। तो कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, कितना भी आपको कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन याद रखना है, एक कार्बन को मीथेन, दो को इथेन, तीन को चार प्रोपेन, चार को ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे ही आपको याद कर लिया आपने। उसके बाद अगर आपका समझो एग्जाम्पल, जो अल्केन का फॉर्मूला था उसमें से एक हाइड्रोजन कम है, तो आप क्या बोलेंगे, उसको अल्काइल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल पेंटेन का फॉर्मूला दिया हुआ है C5H12, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ पेंटेन, बट बिकॉज अगर मेरे को बुक में जो दिया ये नहीं दिया, इंस्टेड ऑफ दैट ऐसा लिखा हुआ है C5H11, तो मैं इसको क्या बोलूँगा, इसको बोलूँगा पेंटाइल, समझा, यस टेल मी। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, फंक्शनल ग्रुप, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल, ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे, फंक्शनल ग्रुप, एक मिनट,
Okay, am I audible? So next topic is about functional group. What is functional group? Functional group is the atoms or group of atom, right? Now functional group, example functional group are chlorine, halogens are functional group. So this is atom only, right? Now bromine, this is atom only. If you take about aldehyde, so aldehyde is a group of atom, right? If you talk about acid, so acid is a functional group, but it is a group of atom. Carbon, oxygen, hydrogens are the so group of atom. So these are the atoms or group of atoms, right? Now atom or group of atoms है ना that defines structure and chemical characteristics property of the compound. मतलब compound का property जो है functional group ही define करता है, मतलब वही change करता है. Example, what is the name of this compound? C2H6. क्या फॉर्मूला है, किसका नाम है, कौन सा कंपाउंड है ये, आपको याद होना चाहिए. दिस इज इथेन. ये क्या है, इथेन. समझो. हाँ बोलो बेटा. हाँ, आई एम शेयरिंग द स्क्रीन, नोट ना, सॉरी. यस. एम आई ऑडिबल? एक मिनट. रुखसार, ए रुखसार, पुप्पी का फोन आ रहा बार बार. फोन करके बोलने मैं परेशान करी हूँ मेरे को. ओके, सो नाउ इट इज ओके. It is visible or not? So what is this compound? What is the name of this compound? Just tell me. What is the name of this compound? C2H6 means what? Alkane ना? And 2 carbon alkane is called as ethane. क्या नाम आएगा? Ethane. Now ethane. If मैं अगर बोलता हूँ, right? The property of this ethane is what? X. एक X property है, right? Am I taking again this formula C6H2? What is the name of this compound? ये कौन सा कंपाउंड है, बोलो जल्दी. इथेन ओनली. अरे बोलो. यस, दिस इज ऑल्सो अ इथेन. तो अगर इसकी प्रॉपर्टी एक्स है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या एक्स रहेगी कि नहीं रहेगी? इसकी भी प्रॉपर्टी क्या रहेगी, एक्स रहेगी. यहाँ तक क्लियर है? अरे बोलो यस सर. चलो अब मैं इसमें थोड़ा चेंज करता हूँ. इसमें क्या करा मैंने, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच किया, C2H5 हो जाएगा और यहाँ पे OH लगा दिया. क्या लगा दिया, OH. OH इज अ फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप. और यहाँ पर क्या किया, एक फंक्शनल ग्रुप लगाया, एक H हटा दिया, उसकी जगह पे क्या लगा दिया, C डबल बॉन्ड OH. राइट. दोनों की प्रॉपर्टी पहले क्या थी, सेम थी. बोथ आर हैविंग व्हाट, सेम काइंड ऑफ प्रॉपर्टी. बट नाउ आई हैव पुट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ओवर हियर. Here I have put alcohol, here I have put what, acid, right now. So now property of this compound is what, different from this, right now. Here if you see now, this is flammable in nature. फ्लेमेबल इन नेचर मतलब आग पकड़ लेगा. ये क्या है, इथेनॉल जो है आग पकड़ता है, अल्कोहल जो है आग पकड़ता है. फ्लेमेबल एंड स्वीट स्मेल. स्मेल कैसी है इसकी, स्वीट स्मेल. और वी कैन से ओडर क्या है, स्वीट है. मतलब प्रॉपर्टी देखो. नाउ अब अगर इसकी प्रॉपर्टी में बात करूंगा तो इट इज अनफ्लेमेबल. अनफ्लेमेबल मीन्स आग नहीं पकड़ता ये, अनफ्लेमेबल. सेकेंड पॉइंट, ओडर इज पंजेंट. पंजेंट का मतलब होता है, पंजेंट ओडर मतलब ओडर, बदबूदार ओडर. ओडर मतलब उसकी बास कैसी होती है, बदबूदार एकदम. तुम उसको जैसे अंडे में बास आती है, जैसे सड़ा हुआ अंडा रहेगा तो वो बास आती है, वैसी स्मेल रहती है इसकी. आप बताओ, इसकी स्मेल स्वीट है, अच्छी स्मेल है इसकी. क्या हो, पहले तो कंपाउंड दोनों की प्रॉपर्टी सेम थी, मैंने ये ऐड किया तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई है, डिफरेंट हो गई. बोथ आर हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी नाउ on the basis of this. So these are what, these are the compound, these are the atoms or group of atom which is responsible for the characteristics property of the organic compound. So what is the definition of functional group? Functional group are the atoms, radicals or group of atoms
which defines the structure and characteristics property of the organic compound. Understood? सम अरे समझा? अंडरस्टूड, वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम बेटा, अभी फिलहाल मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ मगर फिर भी बता दूँ आपको, सबको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, वी डोंट नो द नेम ऑफ अल्केन्स, राइट ना? सो नेक्स्ट टाइम यू शुड बाय हार्ट द नेम ऑफ ऑल अल्केन, दैट इज 1 to 20 number you should by heart. Then whatever I have sent you the list of functional groups, that should be remember next time. Next time we will discuss IUPAC naming, that is very important, that will help you in future also in 11, in 12 and in your all study of chemistry. जब भी आप chemistry करेंगे तो IUPAC naming will be there in your study, and for IUPAC naming you should know the name of alkane 1 to 20 and you should know the name of functional groups. Understood? तो आपको उसको याद करना है। नेक्स्ट टाइम अगर बिना उसके आएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। लेट मी क्लियर यू। अंडरस्टूड? समझा बेटा? बैटरी का ऑन करने से बैटरी लो हो गई है। ओके, सो लेट्स डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक, आइसोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज आइसोमर्स? डू यू नो व्हाट इज आइसोमर्स? किसी को पता है व्हाट इज आइसोमर्स? किसी ने कभी सुना है? हैव यू एवर heard this compound, this name isomer? बोलो बेटा। नो, वेरी गुड, अच्छी बात है। सो व्हाट इज आइसोमर? आइसोमर डेफिनेशन जो बुक में दिया हुआ है और जो हर बुक में रहता है वो मैं बता देता हूँ। इट इज अ कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है? डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। लेट मी एक्सप्लेन यू। Example, I will take example of isomer over here. You can see over here isomers, right? ये दोनों को देखो, तो these are the isomers of butane and pentane। अगर देखें n butane and isobutane, now how to write the n butane and isobutane? So this is our isobutane, this is our n butane, है ना? If you see both of them, है ना, both are them having what same molecular formula? What is the formula? Butene. This is the formula of, let me take here this one, n-pentane and isopentane and neopentane. Now what is iso neo? I will explain you, don't worry। पहले isomer समझते फिर iso neo में जाएंगे। तो if you see these compounds, right ना, n-pentane, isopentane and neopentane, if you see this compound na, what you find out, all of them are having same molecular formula. What is the formula? Molecular formula is this compound is what? C5H12। Please check it, count karo beta, 5 carbons are there and 12 hydrogens are there। If you find the molecular formula, this isopentane is same only, neopentane molecular formula is same only। So here all of them are having what? Same molecular formula। What is same molecular formula? But they are having what? Different structural formula। You can see over here, here you have what? Straight line chain, here branch is there, here two branch are there, right now all of them having what? Different structural formula। So such compound which are having same molecular formula but different structural formula, such compounds are all called as what? Isomers। कोई भी compound, चाहे alkane हो या alkene हो या alkyne हो, whatever it may be, but if they are having what? Different structure formula, a structure is different but formula, molecular formula is same, then we will say what? It is called as isomer। Understood? Yes, response करो बेटा। बट ये जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, इट इज़ रॉन्ग। ये जो आप लोग मैंने बोला अभी वो क्या है? रॉन्ग है। बिकॉज ये जो डेफिनेशन है वो हम लोग अगर जब हायर स्टडी में जाएंगे तो यू विल सी different type of isomers here, as here it is given chain isomer, position isomer, right? uh,
right? It is a linear isomer, right? Branch isomer, right? So here different type of isomers is given, right? So in same way many type of isomers are there, so in which two types of isomers are there, that is stereoisomer and structural isomers, right now. So stereoisomers is what, the compound having same molecular formula, different what stereo means, different spatial arrangement, right? That we will see in 12th standard. And structural isomer is the compound having same molecular formula but different structural formula. तो definition जो आज हम लोग पढ़ रहे, the compound having same molecular formula but different structural formula is isomer. ये definition isomer का है ही नहीं, ये definition किसका है, structural isomer का है. किसका है, structural isomer. ऐसे कंपाउंड जिसका molecular formula से होता है और structure में difference होता है उसको बोलते हैं structural isomer. ठीक है, यहाँ पे दिया देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड स्टीरियो आइसोमर. ठीक है बेटा, आपको थोड़ा सा हाईलाइट किया, एग्जैक्टली डिटेल में नहीं दिया है, बस दिया हुआ है. तो स्ट्रक्चरल आइसोमर का डेफिनेशन वो है. तो इस आइसोमर का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, आइसोमर का डेफिनेशन उसके नाम में लिखा हुआ है. आइसो का मतलब होता है सेम एंड मर का मतलब होता है, मर इज डिराइव फ्रॉम मैरोज एंड मैरोज मीन्स व्हाट, पार्ट और यूनिट. सो द कंपाउंड हैविंग सेम पार्ट और सेम यूनिट. अब सेम पार्ट है सेम यूनिट यानी सेम चीज़ से बना है, इसका मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा. तो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, डेफिनेशन खाली इतना ही रहेगा, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड एज आइसोमर. डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला नहीं बोलना चाहिए, बट बिकॉज हमारे सिलेबस में या बुक में दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे. बट फॉर योर knowledge you will say isomer is what, same molecular formula, compound having same molecular formula is called as isomers, and formation of isomers is called as what, isomerism. The phenomenon by which isomers are formed is called as what, isomerism. Understood? Yes. Okay. Now isomers, if you see the isomers the compound which are what, showing similar chemical property. They are showing similar chemical property. Why? Because they are made up of hydrocarbon only. Their number of electrons are same, so number of electrons are same. Therefore, means molecular formula is same. Na? Molecular formula is same is what, number of electrons are same. And what is chemical bonding? Chemical reaction is nothing but a reaction breaking and making of what, gaining and losing of electron. इलेक्ट्रॉन जितने रहेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन सेम है तो ऑब्वियसली गेनिंग एंड लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, यानी रिएक्शन भी सेम होगा. तो केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, सेम होंगी. बट फिजिकल प्रॉपर्टी इज अ प्रॉपर्टी विच डिपेंड्स ऑन व्हाट, विच डिपेंड्स ऑन साइज. तो शेप पे डिपेंड करता है, बिकॉज शेप देखो, अगर आप देखेंगे मैंने अभी एग्जांपल दिया, यहाँ पे शेप क्या है, स्ट्रेट है, यहाँ पे क्या ब्रांच है, यहाँ पे ज़्यादा ब्रांच हो गया, तो शेप डिफर कर रहा है तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफर करेगी. तो आइसोमर्स आर द कंपाउंड विच आर हैविंग व्हाट, सेम molecular formula, therefore they are showing same chemical property but they are differing in what, physical property. Understood? समझा? Number of isomers, how to find out number of isomers? So with increase in number of carbon, number of isomers increases with increase in number of carbon. मतलब जितने नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे तो आइसोमर बनाने की पॉसिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, राइट ना. आइसोमर जैसे एग्जांपल 2 कार्बन है, राइट, तो 2 कार्बन में आप स्ट्रेट चेन नहीं लिख सकते, ब्रांच लिख सकते क्या, नहीं. 3 कार्बन में भी आप ब्रांच लिख सकते क्या, नहीं. ये अगर आप निकाल के यहाँ लगाएंगे तो वो भी स्ट्रेट चेन हो जाएगी, ये भी स्ट्रेट चेन होगी, ब्रांच इसको नहीं बोलेंगे. अगर आप ऐसी चेन लिखते हैं ना, ये ब्रांच नहीं, ये स्ट्रेट चेन है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है. ब्रांच किसको बोलते हैं, 3 कार्बन की ये 4 कार्बन की चेन थी, अब इसको ब्रांच में लिखना है तो आप ये कार्बन को हटा दो, ऐसा 3 लिखो पहले कार्बन, और ये कार्बन को यहाँ बीच वाले कार्बन में लगा दो, तो दिस इज अ ब्रांच कार्बन. तो नाउ टू डिफरेंट स्ट्रक्चर आर देयर. तो मतलब क्या, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो आपको अलग अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे. तो अभी तक 3 कार्बन तक, प्रोपेन तक कोई आइसोमर नहीं बन रहा था. ब्यूटेन में हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, 2 आइसोमर्स आर देयर. पेंटेन देखते 5 कार्बन आर देयर. इफ आई एम हैविंग 5 कार्बन, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पुट दिस हाइड्रो कार्बन ओवर हियर, है ना. इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, राइट. इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, कैसा लिखता हूँ, ये जो कार्बन है इसको यहाँ पे लगा दिया तो क्या हो जाएगा, इसको हटा दो, हाँ, ये कार्बन को यहाँ लगा दिया तो इसको, मतलब ये कार्बन ये पहले से था और ये कार्बन एक और आ गया, तो अभी कितने आइसोमर बने, 1 2 3 आइसोमर्स बने. तो हाउ मेनी आइसोमर्स आर देयर, 3 आइसोमर्स. अभी ब्यूटेन में 4 कार्बन में थे 2 आइसोमर थे, 5 कार्बन में 3 आइसोमर बने.
So what we have concluded from this, we can say that with increasing number of carbon, number of isomers increases. Understood? Now, types of isomers, there are different types of isomers, as I told you in earlier, means already I have told you, different types of isomers are there: chain isomer, position isomer, functional group isomer, metamerism, tautomerism, right? So these type of isomers, these four or five isomers comes under what? Structural isomers. Basically, isomers are classified into two type only, that is structural isomers and stereoisomers. The compound having same molecular formula, different structure is called as structural isomers. The compound having same molecular formula, different stereo का मतलब होता है different स्पेशल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट में डिफरेंट है, दोनों के अरेंजमेंट में डिफरेंट है, उसको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमर्स. अब ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, अगर आपके सिलेबस में आगे दिया रहेगा तो, नहीं तो हम लोग 12 में पढ़ेंगे, क्योंकि इसको पढ़ाने के लिए पूरा बहुत सारा टाइम लगेगा, तो उसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं. आपको बस डेफिनेशन बोल रहा हूँ. व्हाट इज द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स? द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चर. द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट arrangement of atom is different, so we will say it is a stereoisomers. These two main branch of stereoisomers are further classified accordingly. Structural isomers are further classified into 5 types, that is chain isomer, position isomer, functional group isomer, metamerism, tautomerism, right now. And stereoisomers are further classified into 2 types, that is geometrical isomerism and optical isomerism. It is not given over here, optical isomerism, in your syllabus, but geometrical isomerism is mentioned over here. So stereoisomers are further classified into 2 types, that is geometrical isomers and optical isomers, right? So आइसोमर जब भी आएगा आपका, उसका जो हेडिंग है वही आपको 99% या 95% केस में आपको डेफिनेशन बना के देगा. इफ इट इज रिटन, जैसे इस एग्जांपल यहाँ बोला मैंने, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, तो क्या डिफरेंट है? स्ट्रक्चर. मॉलिक्यूलर फॉर्म में सेम सब में रहेगा, सबके अंदर ये सेंटेंस आएगा. द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. डिफरेंस क्या रहेगा? नेम में देखो, नेम में डिफरेंस बता देगा. स्ट्रक्चर डिफरेंस है तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर. स्टीरियो में डिफरेंस है तो इट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर स्टीरियो आइसोमर. स्टीरियो का दूसरा वर्ड क्या है? स्टीरियो इज नथिंग बट इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेशल अरेंजमेंट. स्टीरियो मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ एटम इन स्पेस, और उसको केमिस्ट्री में बोलते हैं स्पेशल अरेंजमेंट. तो स्टीरियो का मतलब होता है स्पेशल अरेंजमेंट. तो क्या डिफरेंस है? स्टीरियो, स्टीरियो मतलब क्या? स्पेशल अरेंजमेंट. तो हम लोग उसका डेफिनेशन क्या बनाएंगे? कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट. Stereo means spatial arrangement is different, therefore such compounds are called as stereoisomers, and the phenomenon is called as stereoisomerism. ठीक है. देन अभी यहाँ पे ये कंपाउंड के डेफिनेशन क्या बनेंगे आप लोग खुद से बना सकते हैं, इफ इट इज गिवन और नॉट. मगर कुछ मैं बता देता हूँ, और बाकी के अगर रहेंगे तो बताऊँगा, कुछ का मैं ऐसे ही बोल देता हूँ. तो कुछ का मैं बोल देता हूँ. यहाँ के यू कैन सी ओवर हियर चेन आइसोमेरिज्म. चेन आइसोमेरिज्म मतलब क्या? नाम से मालूम पड़ा, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट लेंथ ऑफ चेन, मतलब कार्बन की लेंथ में फर्क रहेगा चेन में. एग्जांपल यहाँ पे आपने देखा, हियर यू कैन सी हियर 5 कार्बन लेंथ इज देयर, हियर 4 कार्बन चेन लेंथ इज देयर, हियर 3 कार्बन लेंथ इज देयर. So these are the example of chain isomerism, right? If the length of chain is different, so such kind of compound is called as chain isomerism. Understood? Response करो बेटा. Yes, response. Next one is what? Position isomerism. So definition is what? The compound having same molecular formula but different position of functional group. फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अगर अलग रहेंगी, मतलब अलग अलग जगह पे फंक्शनल ग्रुप रहेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म. एग्जांपल, लेट मी टेक एग्जांपल ओवर हियर. यू कैन सी ओवर हियर ब्यूट 1 in ब्यूट 1 in is there, and ब्यूट 1 is there, ब्यूट 2 in. ये दोनों को देखो, ब्यूट 1 and ब्यूट 2 in, right ना. If you see this compound, both are having same molecular formula. What is the molecular formula of them? C4H8, right? Check it. C4H8 इसमें है, इसमें C4H8 है, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बट बोथ आर हैविंग व्हाट? सेम लेंथ ऑफ चेन. लेंथ ऑफ चेन भी सेम है. लेंथ ऑफ चेन डिफर करेंगे तो हम लोग बोलेंगे चेन आइसोमेरिज्म है, बट लेंथ ऑफ चेन भी सेम है. 4 कार्बन इसमें है, 4 कार्बन इसमें. तो व्हाट इज द डिफरेंस ओवर हियर? हियर डबल बॉन्ड पोजीशन इज डिफरेंट. यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या है? फर्स्ट पे स्टार्ट हो रहा है. यहाँ पे डबल बॉन्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया. तो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डबल बॉन्ड? सेकेंड से स्टार्ट हो रहा है. So here the position of double bond is 1, here position of double bond is 2. So
since the position of functional group, that is double bond is a functional group over here. You can see मैंने जो लिस्ट भेजा उसमें जाके देखेंगे डबल बॉन्ड भी एक फंक्शनल ग्रुप है. तो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन क्या है, डिफर कर रही है. तो पोजीशन डिफर कर रही है, ऐसे आइसोमर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पोजीशन आइसोमर. डेफिनेशन क्या बनेगा, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज व्हाट, position isomer. Understood? Yes or no? These are the example of position isomers. These are the example of chain isomer. You can see 4 carbons are there, 3 carbon chain is there. So carbon length is chain is different. So we can say alkyne क्या, ये alkene का example है जिसमें length of carbon की chain क्या अलग है और carbon की length chain है, तो इसलिए it will come under what, chain isomers. समझा बेटा? रिस्पॉन्स करो बेटा. देन चेन के बाद उसने दिया है पोजीशन हो गया फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म. फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म इज नॉट इन योर सिलेबस. मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म इज आल्सो नॉट इन योर सिलेबस, सो वी विल नॉट डिस्कस बिकॉज इट विल टेक मच मोर टाइम एंड वी डोंट हैव टाइम एंड इट इज़ नॉट योर कप ऑफ टी. हम लोग अगर बोलेंगे तो आप उसको डील नहीं कर पाएंगे, इतना ईजी नहीं है. तो आपको 12th में पार्ट दिया हुआ है तो 12th में ही रहने दो. विल नॉट डिस्कस दैट राइट ना. So that we will discuss in 12th, that is metamerism and tautomerism and functional group isomerism. Now you have geometrical isomerism. Geometrical isomerism means what? Geometrical isomerism नाम से मालूम पड़ा. Again the name itself suggests what is the definition. Geometry is different. Compound having same molecular formula but different geometry is called as geometrical isomerism. Geometry difference. Geometry का मतलब क्या, यहाँ देखो बेटा. You can see this is called as cis, this is called as trans. Now what is cis and trans? Cis means what, the compound in which identical atom or group of atom lie on the same side of double bond. डबल बॉन्ड के अगर एक ही साइड में सेम चीज रहेगी, सेम चीज दिख रही है आपको, तो उसको सिस बोलेंगे. डबल बॉन्ड के अपोजिट साइड में सेम चीज दिखेंगी, CH3 यहाँ पर है और यहाँ पर है. अपोजिट साइड में अगर सी आपको सेम चीज दिखेंगी तो विच इज कॉल्ड एज व्हाट, ट्रांस. एंड अगर सेम साइड में रहेंगे इसको बोलते हैं सिस. तो डेफिनेशन बोल रहा है सिस का, the compound in which what identical atom or group of atom lie on the same side of double bond is called as what, cis isomers. And the compound in which identical atom or group of atom lie on the different side, opposite side of what double bond is called as what, trans isomer. So if you see these two are having what, different geometry. Here identical atom on the same side, identical atom or group of atom are opposite sides. So both are having what, different geometry. Geometry are different. Both are having what, different geometry. So such compounds are called as geometrical isomers. If geometry is different, then we will say what, this will come under what, geometrical isomers. Understood? Yes. So we have completed our topic of what, isomerism. Next time we will start the very important topic that will help you in whole chemistry in future also, that is nomenclature. नामकरण कैसे करना कंपाउंड का वो सीखेंगे हम लोग. तो it is request to you that you have to go through whatever I have sent you and please by heart it right now. Please try to learn it conceptually and by heart it. इसको अच्छे से याद कर लो. नेक्स्ट टाइम मैं कुछ भी पूछूँ आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हेप्टेन ऑक्टेन, कुछ भी बोलूँगा आपको डायरेक्टली आपको आना चाहिए. Okay beta, yes or no? Any kind of doubt is there?